हेलो एडल्ट्स। तो साइकोलॉजी का पेपर 5 अप्रैल 2023 को है। बीच में आपको कुछ लोगों को कुछ टाइम मिला हुआ है, कुछ के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, सिर्फ साइकोलॉजी बचा है। कुछ तैयारी कर रहे हैं बीच बीच में अलग अलग सब्जेक्ट्स की और साइकोलॉजी की भी साथ में। बीइंग दी सब्जेक्ट, आपके 12th के ओवरऑल मार्क्स में साइकोलॉजी का एग्जाम का जो नंबर आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साथ ही साथ में अगर आपको साइकोलॉजी में बैचलर्स करना है तो भी मेरिट बेसिस में आपके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज में। और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ हफ्ते पहले स्टार्ट किया था बिगुल 2023, जहां पर हम फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे थे। और इस सैंपल में हमने बहुत सारी चीजें की हैं। हमने वन शॉट वीडियोस बनाए हैं, लिंक आपको यहां मिल जाएगा। हमने इसके साथ ही साथ कुछ वन पेजर नोट्स बनाए थे फॉर योर रिविजन्स। हमने एक सैंपल पेपर भी इस पे बनाया हुआ है, अगर आपने उसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और इसी सीरीज में नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डूइंग सैंपल नंबर 2। तो सैंपल पेपर नंबर 2 देखेंगे इस पर्टिकुलर एपिसोड में। So let's start with the MCQs. Question number 1. Bindu is a remarkable singer and she has won many accolades. She is known as child prodigy. Which of the following terms describes Bindu's ability? A. Talent. B. Giftedness. C. Naturalistic intelligence. And D is interest. Now, she is a singer. She is prodigy. So that goes with talent, right? Moving forward, so talent is the right answer. Mir, question number 2. Mir had no recollection of the bicycle he received on his 10th birthday, but when Neeta reminded him about the same, he was able to recall it. This is because memories of his birthday were lying in dash level: unconscious, preconscious, conscious और superconscious. Unconscious जो याद नहीं आता है, प्रीकॉन्शियस जो बीच में रहता है, याद दिलाया जाए तो याद आ जाता है, कॉन्शियस जो ऑलरेडी याद रहता है या सामने रहता है, और सुपर कॉन्शियस इज डिफरेंट। तो यहां पर क्या है, जो ऑलरेडी एक पास्ट मेमोरी में है, याद दिलाया जाए तो याद आ जाए, दैट इज Number B, preconscious. Question number 3. The notion of dash is based on Bandura's social learning theory. Option है self-esteem, self-efficacy, self-regulation और self-cognition. क्या हो सकता है? Bandura's social learning theory is correct number B, self-efficacy. Next, question number 4 is dash is the way of reducing anxiety by distorting reality. रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके अपनी एंजाइटी को कम करना क्या हो सकता है? सुपर ईगो, डिफेंस मैकेनिज्म, कॉन्शियसनेस या नन ऑफ दीज। तो जब हम रियलिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हम जनरली डिफेंस मैकेनिज्म पर जाते हैं, जहां हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, राइट? नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल एग्जॉशन इज नोन एज रेजिस्टेंस, स्ट्रेस, बर्नआउट और कोपिंग। जब हर तरीके से बर्नआउट हो जाता है, हर तरीके से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो उसे बर्नआउट कहते हैं। Dash results from the blocking of needs and motive by something or someone that hinders us from achieving the desired goal, whether it is conflict, frustration, internal pressure or none. क्या होना चाहिए आंसर? Obviously, it is frustration. Frustration results from blocking of needs and motives. Conflicts may occur between two or more dash needs or motives. Conflicts कैसे हो सकते हैं? Compatible, basic, incompatible और complex. Conflicts may occur between two or more B, that is incompatible needs or motives, right? When the person has to use more and more of a substance to get the same effect, it's called substance dependence, substance abuse, tolerance और withdrawal. सबके अलग अलग मतलब है, यहाँ पर डिपेंडेंसी हो रही है, that is substance dependence. Answer is A. Question number 9. When a person's overall behavior pattern are inflexible and maladaptive and cause distress, the person may be diagnosed with schizophrenia, dissociative personality or disorder or fugus. Overall behavior pattern is inflexible, maladaptive and that causes distress. That is a personality disorder. Inability to stop thinking about a particular idea or topic is known as which kind of behavior? हमने पढ़ा था, हम जब एक चीज को बार बार हमारे दिमाग में चल रही है, इनएबिलिटी है उसको सोच पाने की, दैट इज ऑब्सेसिव बिहेवियर, राइट? कंपल्सिव बिहेवियर जहां पर हम कुछ एक्शन करना चाहते हैं, जब हम सोचना हमारा खत्म नहीं होता, दैट इज ऑब्सेसिव बिहेवियर, राइट? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब असर्शन एंड रीजन पे देखते हैं। तो असर्शन क्या बोल रहा है? एबनॉर्मल लिटरली मीन्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक बात है। इट इंप्लाइज डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स से हटने को हम एबनॉर्मेलिटी मानते हैं। मतलब असर्शन तो सही दिख रहा है, ट्रू दिख रहा है। ऑल डेविएशंस इन बिहेवियर आर कंसीडर्ड सोशली अनएक्सेप्टेबल एंड हेंस कंसीडर्ड एबनॉर्मल। हर डेविएशन
इन बिहेवियर, हर तरीके का डेविएशन को अनएक्सेप्टेबल माना जाता है क्या? थोड़ा सा यहां पर अपने को समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर क्या हो सकता है कि assertion A is true but reason R is not the correct explanation of assertion. The goal is to increase an individual's self-awareness and self-acceptance. इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस ये कैसे में होता है? गेस्टाल्ट में होता है, क्लाइंट सेंटर्ड में होता है, लोगोथेरेपी में होता है, या किसी में नहीं होता? किसका गोल है ये? दिस इज गेस्टाल्ट थेरेपी. Is a form of psychotherapy that is centered on increasing a person's awareness, freedom, and self-conscious direction. The client-centered therapy was given by whom? Sigmund Freud, Alan Bloch, Carl Rogers या Skinner? Client-centered therapy was given by Carl Rogers, right? Assertion and reason. Assertion क्या बोल रहा है? A stereotype is a cluster of ideas regarding the characteristics of a specific group. ठीक है? And prejudice क्या है? Is the negative attitude towards a group of people and stereotype is a cognitive part of it. यहां पर क्या हो रहा है कि पहला assertion तो right है, हमने true है. सेकेंड जो रीजन है प्रेजुडाइज, ये स्टीरियोटाइप का एक बहुत डायरेक्ट आंसर नहीं, करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है. तो हम क्या बोल सकते हैं कि द आंसर इज बी, वेयर इज असर्शन इज ट्रू बट द असर्शन इज रीजन बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15. तो रितेश सीज हिज पेरेंट्स अचीव फाइनेंशियल सक्सेस थ्रू हार्ड वर्क. He considers his mother to be his role model. As a result, Ritesh develops a strong attitude towards success in hard work. This is an example of देखकर सीख रहा है ना, अपने माँ बाप को देखकर सीख रहा है, तो क्या होगा? Learning attitude through exposure of information, through observation, through group or cultural norms, or through reward and punishment. So obvious सी बात है, this is through observation. Next again assertion का question है. तो performance on a specific task is influenced by the presence of others. होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, हमने पढ़ा है ये social cognition में. According to social facilitation, people perform better in presence of other people. Absolutely. So both are true and R is the correct explanation of A. So answer is A, right? Question number 19, which is of 2 marks. Now, explain the behavioral effects of stress. Stress का behavioral effect क्या होता है? हम basically समझते हैं कि sleep खराब हो जाती है, absent बढ़ जाता है, work performance खराब हो जाती है, nutritional effects कम हो जाते हैं, stimulants like alcohol, cigarettes and other drugs यूज करना ज्यादा हो जाता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 20. लेवल्स ऑफ स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं, यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस. इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. व्हाट इज बर्नआउट? एक्सप्लेन एनी वन कॉजेस ऑफ बर्नआउट. सो बर्नआउट इज मेंटल एग्जॉशन, इमोशनल एग्जॉशन, फिजिकल एग्जॉशन. इसका एक कारण क्या हो सकता है? लैक ऑफ सोशल सपोर्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा काम अगर आप कर रहे हो वो हो सकता है, हर तरीके से अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो हो सकता है, कुछ भी आप इसमें से एक चीज लिख सकते हो. व्हाट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन? अगर आपको याद हो तो हमने एग्जांपल से इसको समझा था कि अगर आपको हाइट से डर लगता है तो पहली मंजिल पे जाएंगे, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइज करेंगे कि देखो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, हाइट ओके है, एनवायरमेंट अच्छा लग रहा है. फिर सेकंड पे जाएंगे, फिर थर्ड पे जाएंगे, इस तरीके से सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज करेंगे. दैट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. इट इज बेसिकली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज और इरेशनल फियर्स. जैसे पानी का डर है ना, किसी चीज का फोबिया है, तो वो सबको ट्रीट करने के लिए ये यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज कर्नल ऑफ ट्रुथ? तो कर्नल ऑफ ट्रुथ एज अ सोर्स ऑफ प्रिविलेज कैसे हो जाता है? तो कर्नल ऑफ ट्रुथ में हम क्या बोलते हैं कि अगर यार मुझे ऐसा कभी लगने लगा कि सब अगर एक चीज बोल रहे हैं तो सही ही होगा, सब अगर ये बोल रहे हैं कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता तो ये बात बिल्कुल सही होगी, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. जनरली पीपल गेट इनटू एंजाइटी विद दिस कर्नल ऑफ ट्रुथ केसेस, राइट? तो प्रिजुडाइसेस में भी सेम चीज हो जाती है ना. प्रिजुडाइस बना लेते हैं कि यार सब हर कोई बोल रहा है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी खराब है तो ये खराब ही होगी. दैट इज कर्नल ऑफ ट्रुथ, राइट? व्हाट इज ग्रुप पोलराइजेशन? तो पोलराइजेशन वर्ड को हमने समझा है कि दो एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो एक एक्सट्रीम एंड होते हैं. तो या तो जब ग्रुप बैठती है कोई डिसीजन लेने, तो या तो वो एकदम ही इजी डिसीजन ले लेगी कि हाँ ठीक है इसको जान दो, या तो बहुत ही हार्ड डिसीजन लेगी कि अच्छा इसको तो फांसी पे चढ़ा दो. तो दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन. तो इसमें यह भी बोला गया है कि जो भी स्ट्रॉन्ग इनिशियल पोजीशन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और एक एक्सट्रीम एंड पे आप डिसीजन जनरली ग्रुप में लोग ले लेते हैं. दैट इज ग्रुप पोलराइजेशन. नाउ देयर इज अ केस. क्वेश्चन नंबर 24, 3 नंबर का है, छोटा सा केस. अनन्या इज अ गुड डांसर who is well adjusted in school as she cooperates with her teachers and classmates in all school related activities. She is also liked by friends and family. Identify and explain the type of intelligence Ananya is exhibiting. तो इसमें क्या है, हमने को दो चीजें दिखती है. पहला तो वो डांसर अच्छी है और दूसरा उसका इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छा है.
तो डांसर मतलब बॉडीली कैनेस्थेटिक, और इंटरपर्सनल क्योंकि लोगों से अच्छे घुल मिल रही है तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये दो तरीके की इंटेलिजेंस है, इसको आप लिखकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल, तो ऑलरेडी आपके शरीर में एक प्रॉब्लम है बट वो छुपी हुई है, दबी हुई है, और उसमें जैसे ही एक इंपैक्ट आया, कोई स्ट्रेस आया, तो उसने उस प्रॉब्लम को बढ़ा दिया। दैट इज नोन एज कि डायथेसिस पहले से था, स्ट्रेस आया और उसके कारण से वो एंजाइटी बाहर आ गई। दैट इज नोन एज डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, आप इसको लिख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड बिहेवियर। एटीट्यूड और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो जैसा एटीट्यूड होगा वैसे बिहेवियर होता है जनरली। So the person is aware of his or her attitude. There is a little external pressure for the person to behave in a particular way. For example, there is no group pressure to follow a particular norms and things like that. तो ये आप एक बार आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शनल क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड। अब एटीट्यूड लर्न करने में हमने बहुत सारे प्रोसेस देखे हैं, तो इसमें से दो आपको, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप मैक्सिमम 2 या 3 प्रोसेसेस को डिफाइन कर सकते हो। तो द कंडीशंस दैट लीड्स टू लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स आर बाय एसोसिएशन और बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। तो इसको एक्सप्लेन कर लीजिए। इसका आपने देखा होगा तो आपको एमसीक्यूज में भी इसके 4 ऑप्शंस दिए थे, उसमें से कोई भी 2 ऑप्शन ले लो और उसको आप आगे आराम से डिफाइन कर दो। बाय एसोसिएशन जब हम एसोसिएट करते हैं, और जब रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलता है जो हम सबको मिला हुआ है, तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट 3 कंडीशंस दैट फैसिलिटेट ग्रुप फॉर्मेशन। तो ग्रुप फॉर्मेशन बनने के लिए, ग्रुप बनने के लिए 3 कैसी ऐसी चीजें जो जरूरी है। तो हमने इसमें 4 चीजें पढ़ी थी, तो यहाँ पर आपको उसमें से 3 ही चीज लिखनी है क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या क्या लग सकता है? प्रॉक्सिमिटी, आसपास के अगर लोग हैं तो हम उनसे हमारा ग्रुप अच्छा बन जाता है। सिमिलैरिटी, अगर सारे डांसर्स हैं, एक जगह मिल रहे हैं, सब डांस करने चाह रहे हैं, तो उनका एक डांसिंग का ग्रुप बन जाता है। कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, सब पढ़ना चाहते हैं, सब स्कूल जा रहे हैं, उनकी दोस्ती हो गई, उनका एक ग्रुप बन गया, तो कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स है। ठीक है। तो ये आप इसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं लंबे में, प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी एंड कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स को। क्वेश्चन नंबर 28 इज इंटेलिजेंस इज द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स, एक्सप्लेन। ठीक है। 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स को इंटेलिजेंस के साथ जब हमने देखा तो हमने इसको पास मॉडल पे समझा है। ठीक है। जेपी दास का जो पास मॉडल है, प्लानिंग, अटेंशन अराउजल एंड स्टिमुलस, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो पास मॉडल को आपने लिखना है और उसको डिफाइन कर देना है। ये न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स के बेसिस पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, Angad has been the topper in class. He went to the topmost college where he was neither sensitive to himself nor all the classes, 111 others. This led to problems in interpersonal relationships regarding his condition. According to importance of emotional intelligence in his life, explain. तो इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो खुद के लिए उसका इंटेलिजेंस अच्छा था, ठीक है, उसका आईक्यू बहुत अच्छा था, बट ईक्यू में वहां पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने चैप्टर नंबर 1 में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा है, बस उसको आपने डिफाइन कर देना है। बेसिक आप अपनी दिमाग भी लगाओगे थोड़ा सा तो आप उसमें लिख सकते हो। कुछ कीवर्ड्स आपने लिखने हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इमोशनल क्वेश्चन क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से इसमें इस अंगद के केस में क्या हो सकता था, एंड इफ यू कैन डिफाइन दैट, दैट्स ग्रेट। है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ स्किल दैट अंडरलाई एक्यूरेट अप्रेजल, एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ इमोशन। आप अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हो। ईक्यू और आईक्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। जरूरी नहीं है कि आपका आईक्यू अच्छा है तो ईक्यू भी अच्छा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 4 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्कस लाइफ इवेंट्स एंड हैजल्स एज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जब हमने सोर्स ऑफ स्ट्रेस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि लाइफ इवेंट्स और लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स जो है वो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण होती है। उसके साथ साथ जेनेटिक एक प्रॉब्लम होती है, हेरिडिटी एक प्रॉब्लम होती है, सोशल स्ट्रक्चर जो एक है वो प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आपसे लाइफ इवेंट्स एंड हैजल्स का पूछ लिया है, तो लाइफ इवेंट्स क्या होते हैं वो लिख दो, एक दो लाइफ इवेंट्स के एग्जाम्पल लिख दो और उसको एक्सप्लेन कर दो कि लाइफ इवेंट्स से कैसे प्रॉब्लम होती है। हैजल्स मतलब लाइफ में जो डेली चैलेंजेस आ रहे हैं उससे क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसको आप अपने मन से, अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, Aman is an 8-year-old who has profound difficulty relating to other people. Often he is found to be unresponsive of others' feelings and exhibits stereotypical patterns of behavior. Identify this disorder and describe its feature. क्या हो रहा है? 8 साल का बच्चा है, दूसरों से रिलेट करने में इसको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब दूसरों से रिलेट करने में प्रॉब्लम होगी, दूसरे कुछ बोल रहे हैं, उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है, एग्जिबिट स्टीरियोटाइपिकल पैटर्न्स को एग्जिबिट कर रहा है, ये जनरली जो अगर हम देखेंगे तो ये ऑटिज्म का केस आ रहा है। तो ऑटिज्म का केस इज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, राइट, और उसको आराम से ऑटिज्म को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 विच इज ऑफ 6 मार्क्स नाउ. हाउ डज बिहेवियरल एनालिसिस हेल्प अस इन असेसिंग पर्सनैलिटी. बिहेवियरल एनालिसिस से पर्सनैलिटी कैसे जज कर सकते हैं? तो हमने इसको पर्सनैलिटी सेल्फ एंड पर्सनैलिटी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, राइट? कि पर्सनैलिटी को एसेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं. उसका एक तरीका हमने पढ़ा था बिहेवियरल एनालिसिस. एक्सप्लेन एनी 2 मेथड्स ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस विद देयर लिमिटेशंस. तो 2 मेथड कौन कौन से ले सकते हैं हम? एग्जांपल, इंटरव्यू ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. वैसे 5 ऑप्शंस थे हमारे पास, इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 2 में. इंटरव्यू एंड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो और उसके लिमिटेशंस डिफाइन कर सकते हो. तो इंटरव्यू क्या होता है, उसके 2 सेक्शंस क्या होते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है, इनफॉर्मल इंटरव्यू क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, किस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है अगर अगले को पता है तो क्या होगा, नहीं पता है तो कैसे होगा, इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हो. हमने बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में, राइट? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 32 का ही ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू प्रोजेक्टिव टेक्निक्स असेस पर्सनैलिटी. एक्सप्लेन एनी 2 वेल नोन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स. प्रोजेक्टिव टेक्निक्स से पर्सनैलिटी कैसे असेस की जा सकती है? तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या पढ़ा था हमने? जो 3-4 तरीके पढ़े थे, इफ रिमेंबर 5 तरीके थे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर जब हम पर्सनैलिटी असेस करते हैं. याद आ रहा है? ठीक है. तो आगे समझते हैं कि पर्सनैलिटी टेक्निक्स जो है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है और इसमें 2 जो तरीके होते हैं, दो अगर हमें लिखना है तो हम रोशास लिख सकते हैं और टैट लिख सकते हैं, थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट. तो ये ऑलरेडी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आना ही चाहिए. अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आराम से लिख दोगे कि उसमें 10 इंक ब्लॉक्स होते हैं, 5 व्हाइट होता है, 2 रेड होते हैं, 3 पेस्टल कलर्स होते हैं, फिर उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है. अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप रोशास को एक्सप्लेन कर दो, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो, टैट को एक्सप्लेन कर दो, उसका प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो. अब एक केस पढ़ते हैं, ठीक है? तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके 2 केस दिए हुए हैं. केस नंबर 1 है कि समय was a 28-year-old single male who at the time he entered treatment thoughts and images about causing harm to others such as running over pedestrians while he was driving. He had also severe obsessions that he would commit a crime such as robbing a store or poisoning family members or friends. These obsessions were accompanied by lengthy and excessive checking rituals. For example, one day when he drove, he began obsessing that he has caused an accident, he is a pedestrian at an intersection, and he felt compelled to spend several hours driving and walking around all parts of that intersection to find evidence of the accident. At the time, Samay went to an anxiety disorder clinic. He was no longer able to live by himself after having lived alone for several years since college. He was a very bright young man with considerate artistic talent. He had finished college at a prestigious school for the arts, and he had launched a successful career as a young artist. When the obsession began in his early 20s, at the first, he was focused on the possibility that he would be implicated in some crime that he had committed. Later, they evolved to the point where he was afraid that he might commit a crime and confess to it. The checking rituals and the avoidance of all places where such confessions might occur eventually led to him having give up his career and his apartment and move back in with his family. ऑब्सेशंस और कंपल्शंस क्या होता है इसमें पूछा हुआ है. ऑब्सेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर का है प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया ऑब्सेशन कंपल्सन. एंड व्हाट सिम्टम्स ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्सन वर सीन इन समय. तो सिम्टम्स क्या है वो आपको केस में से मिल जाएंगे कि उसको बार बार वो देखने जा रहा है, वो पेडेस्ट्रियन जा रहा है, चेक करने जा रहा है, बार बार उसको ये थॉट आ रहा है कि लोगों को मार सकता हूं मैं और उनको जहर मिला सकता हूँ, वो सारी चीजें तो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट केस इज नाउ. Reshma is regarded by her teachers as an excellent student. She does her work on time, scores the highest grade in the class, listens to instructions with care, grasps quickly, and reproduces accurately. But she really comes out with ideas and that are her own. Seema is another student who is just average in her studies and has not achieved high grades consistently. She prefers to learn on her own. She improvises new ways of helping her mother at home and comes with new ideas of doing homeworks and assignments. There is a third student, Sunita, who is average in class and is not very involved in studies but has the high capacity to learn instruments. She was trained at an early age and now with the music training she has become perfect at it. She has a good capacity to learn this skill through training and practice. It has been observed that Reshma leans more towards being intelligent. Seema is creative whereas Sunita has a high aptitude to play music. ठीक, केस सिंपल सा केस है. Now define intelligence and explain why Reshma is considered intelligent. क्योंकि IQ स्ट्रांग है, चीजें याद कर पाती है, रख पाती है, लिख पाती है, इसलिए इंटेलिजेंट. डिफाइन क्रिएटिविटी एंड एप्टीट्यूड एंड एक्सप्लेन व्हाई सीमा इज कंसिडर्ड क्रिएटिव. पहले क्रिएटिव और एप्टीट्यूड बता दो, क्रिएटिविटी क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होती है, उसको डिफाइन कर देंगे और फिर ये बता देंगे कि सीमा क्रिएटिव क्यों है. क्योंकि वो चेंज कर लेती है, वो अपग्रेड कर लेती है अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, नए 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 आइडियाज लेकर आ जाती है, तो वो क्रिएटिव होगी, राइट. So this is how our this sample number paper number 2 ends. I hope this helps you a lot, and if this helps,
just drop me a comment on down and like this video, share with your friends. Bye bye.